السلام علیکم، علاقائی خبرنامے کے ساتھ میں ہوں گلاب بلوچ۔ اے اللہ، خانوادہ رسالت کی اس عظیم قربانی کے صدقے میں جو کربلا کے میدان میں تیرے دین کی بقا کے لیے دی گئی، ہمیں دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ، آمین۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو خبر دیں، آمدن سے زائد اثاثے بنانے کے الزام میں پیپلز پارٹی کے رہنما سہیل انور سیال کی رہائش گاہ پر نیب نے چھاپے مارے، جہاں سے اہم دستاویزات قبضے میں لے لی گئیں۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں کے بعد دریاؤں اور ندی نالوں میں سیلابی صورتحال ہے۔ بالاکوٹ کے دریا میں میاں بیوی سمیت 9 افراد بہہ گئے، جبکہ مدین کا رابطہ پل بھی ٹوٹ گیا، جس سے ریلے میں پھنسے 13 افراد کو نکال لیا گیا، جبکہ بچی اور نوجوان کی لاش بھی برآمد ہوئی۔ دریائے کنہار، دریائے سندھ اور سرن کی قریبی آبادی کو نقل مکانی کرنے کی ہدایات کر دی گئی ہیں، جبکہ دیر بالا میں سیلابی ریلے میں لکڑی کے 4 پل بہہ گئے۔ داموڑی پاور ہاؤس کا حفاظتی بند بھی ریلے کی نظر ہو گیا۔ پٹکوٹ میرا بشام میں گھر کی دیوار گرنے سے 2 بچے جاں بحق ہو گئے۔ چترال میں سیلاب سے ریشن کے مقام پر گاؤں کا بڑا حصہ دریابرد ہو گیا۔ منسیرا میں حسین بانڈا میں گھر کی چھت گر گئی، ملبے تلے دب کر 4 افراد جاں بحق، جبکہ ایک خاتون زخمی ہو گئی۔ منسیرا میں ٹانڈا بجنا کا رہائشی دریا سرن میں بہہ گیا۔ تورغر میں لینڈ سلائیڈنگ سے گھر تباہ ہو گئے، رابطہ سڑکیں بھی بند ہو گئی۔ بٹہ گرام میں شملائی ملکال کے مقام پر گھر لینڈ سلائیڈنگ اور سیلابی ریلے کی زد میں آ گیا، مال مویشی اور سامان ریلے میں بہہ گئے۔ سوات کے بالائی علاقوں میں سیلابی صورتحال برقرار ہے۔ مدین اور بحرین کے علاقوں میں سیلابی ریلے میں متعدد گھر بہہ چکے ہیں، ہوٹلز کو بھی خالی کرا لیا گیا ہے۔ 4 میں دریائے سوات میں 4 کے مقام پر اس وقت 85,000 کیوسک پانی کا ریلا گزر رہا ہے۔ 4 کے مقام خیالی پر رابطہ پل ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ پل کی بندش کی وجہ سے جی ٹی روڈ پر پشاور اور 4 کا زمینی رابطہ منقطع ہے۔ لوئر دیر میں بھی بارش نے تباہی مچا دی۔ دریائے پنچگوڑا میں سیلاب آنے سے زرعی اراضی زیر آب آ گئی۔ ہری پور میں بارش سے ندی نالوں میں طغیانی آ گئی، متعدد مقامات پر پل پانی میں بہہ گئے۔ خیبر پختونخوا میں بھی بارشوں اور سیلابی ریلے نے تباہی مچا دی۔ مختلف حادثات میں 12 افراد جاں بحق ہو گئے، کئی مکانات اور پل سیلابی ریلے میں بہہ گئے۔ ملک بھر میں حالیہ بارشوں نے تباہی مچا دی۔ مانسیرا میں مکان کی بوسیدہ چھت گر گئی، ملبے تلے دب کر 4 افراد جاں بحق، جبکہ ایک خاتون زخمی ہو گئی۔ خوشاب میں مکان کی چھت گرنے سے میاں بیوی جان کی بازی ہار گئے۔ جھنگ کے علاقے مسن میں مکان کی چھت گرنے سے 2 افراد جاں بحق، جبکہ 3 زخمی ہو گئے۔ چکوال میں چھتیں گرنے کے 2 واقعات پیش آئے، اس میں 2 افراد جاں بحق جبکہ 7 افراد زخمی ہو گئے۔ اٹک کے نواحی علاقے بروالا میں سیلابی ریلے میں گاڑی بہہ گئی، کار میں سوار افراد کو مقامی لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت بچا لیا۔ پنجاب میں بارشوں اور سیلابی ریلوں نے تباہی مچا دی، چھتیں گرنے سمیت مختلف حادثات میں 8 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ کبیر والا میں ابر 12 اتنا کھل کر برسا کہ جل تھل ایک ہو گیا۔ لوڈ شیڈنگ اور گرمی سے گھبرائے ہوئے لوگوں نے سکھ کا سانس لیا اور موسم خوشگوار ہو گیا۔ موسلادھار بارش کی تیز فوار میں ہر چیز پانی سے نہا گئی، تاہم بارش کا زور ٹوٹتے ہی بارش کا پانی کبیر والا شہر کی مختلف سڑکوں بالخصوص ملتان روڈ اور بستی حسین آباد سردارپور روڈ سے ٹریفک اور لوگوں کا پیدل گزرنا مشکل ہو گیا، یہاں تک کہ کبیر والا شہر کی مختلف گلیوں میں کئی فٹ پانی کھڑا ہو گیا، جس کے باعث لوگوں کا گھروں سے باہر نکلنا مشکل ہو گیا۔ ایسے میں منچلے گلیوں میں ٹھہرے ہوئے گندے پانی سے لطف اندوز ہوتے رہے اور تیرنا شروع کر دیا، جبکہ نمازیوں کو مسجد آنے تک مشکلات کا سامنا رہا۔ جب بھی بارش آتی ہے یہ مسجد ہے، نمازیوں کے لیے بھی مسئلہ بنتا ہے، ہمارے لیے بھی، ہمارے کاروبار بھی خراب ہے، کوئی بلدیہ والا بندہ انتظامیہ یہاں ہے ہی نہیں۔ ایسے مشکل حالات میں ٹی ایم اے انتظامیہ کی کارکردگی کا پول کھل کر سامنے آ گیا اور لوگ ٹی ایم اے کی ناقص منصوبہ بندی پر کوستے رہے اور انتظامیہ سے اصلاحی احوال کا مطالبہ کیا کہ ہماری اس عذاب سے جان چھڑائی جائے۔ کیمرہ مین وقاص علی سہو کے ساتھ عبد المجید باٹی، سچ نیوز، کبیر والا۔ حالیہ بارشوں کے باعث دریائے سندھ میں جناح بیراج اور چشمہ بیراج کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ سیلابی صورتحال کے پیش نظر ضلعی انتظامیہ نے ریڈ الرٹ جاری کر دیا، جبکہ حفاظتی انتظامات بھی مکمل کر لیے گئے۔ رپورٹ کریں گے پپلا سے محمد آصف۔ حالیہ بارشوں سے میاں والی میں دریائے سندھ کے مقام پر پانی کی آمد میں مسلسل اضافہ کے پیش نظر ضلعی انتظامیہ نے الرٹ جاری کر دیا۔ ضلعی انتظامیہ نے کچا کے علاقہ جات جن میں کچا دراز خیل، موج، تری خیل، شہباز خیل، کچا کمر بشانی، کچا داؤد خیل، ہندال والا، دھوپسڑی سمیت داؤد خیل اور پائی خیل کے علاقہ جات شامل ہیں کے حوالہ سے ریڈ الرٹ جاری کر دیا، جبکہ ریسکیو 1122 کی جانب سے بھی کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے اور شہریوں کو محفوظ مقامات تک منتقلی کے لیے مجموعی طور
पर जिला भर में 8 मकामात जिनमें गवर्नमेंट हाई स्कूल रोखड़ी, गवर्नमेंट हाई स्कूल तरीखैल, गवर्नमेंट हाई स्कूल मोच, गवर्नमेंट हाई स्कूल टिब्बा मेहरबान शाह, गवर्नमेंट हाई स्कूल अहमद शाहवाला, गवर्नमेंट हाई स्कूल ईसा खैल, गवर्नमेंट हाई स्कूल त्रग और म्यूनिसिपल कमेटी ऑफिस कालाबाग शामिल है। पर अमला बमा जरूरी साजो सामान तैनात कर दिया। मियावाली में इस वक्त दरमियाने दर्जे का सैलाब है। जिनाब बिराज पर पानी की आमद 4,04,723 क्यूसिक जबकि इखराज 4,03,23 क्यूसिक है। चश्मा बिराज के मकाम पर भी निचले दर्जे का सैलाब है। चश्मा के मकाम पर पानी की आमद 3,52,002 क्यूसिक जबकि इखराज 3,49,502 क्यूसिक है। कैमरामैन अब्दुल गफार भचर के साथ मोहम्मद आसिफ, सच न्यूज, मियावाली। झेलम की तहसील दीना में निकासी आब का मुनासिब निजाम न होने के बायस ताहाल बारिश का पानी जमा है। शहर की सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं जुल्करनैन शाह। म्यूनिसिपल कमेटी दीना की नाअहली और मुंतखब सियासी नुमाइंदगान की अदम दिलचस्पी की वजह से दीना की बड़ी सब्जी मंडी के साथ मुल्का आबादियां हालिया बारिशों में तालाब का मंजर पेश करने लगी। सीवरेज का निजाम न होने की वजह से बारिश का पानी अहले इलाका के घरों में दाखिल हो गया जबकि गली महल्ले तालाब का मंजर पेश करने लगे। इस इलाका की मेन सड़क भी खंडात में तब्दील हो गई है। सड़क पर सफर करना भी मुहाल है। इलाका मकीनों ने सच न्यूज से बात करते हुए कहा कि जो रोड है लियाकत टाउन की, इकबाल टाउन की, ये पिछले 10 साल के अंदर इसको हुकूमत की अदम तवज्जो का शिकार है और बल्दिया का भी इस तरफ कोई ध्यान नहीं है, जिसके नतीजे के अंदर आप देख सकते हैं कि अहले इलाका बहुत परेशान है। यहाँ हमारे घरों के अंदर 1-1, 2-2 फुट पानी खड़ा है। ये जो हालिया बारिशें हुई हैं और हर जितने भी लोग हैं यहाँ पे, ख्वाह वो मजदूर है, ख्वाह वो कोई मस्जिद में जाने वाला नमाजी है, बच्चे या स्कूल के तमाम लोग यहाँ पे परेशान हैं। तो हमारी ये अपील है अपने जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं और बल्दिया से कि खुदारा यहाँ पे आएँ और यहाँ पे हमारे मसाइल का आके हल करें, सीवरेज के निज़ाम को बेहतर किया जाए। तो खुदारा इस रोड के ऊपर ध्यान दें और जल्द अज जल्द इसके सीवरेज के निज़ाम को बेहतर किया जाए और इसकी जो रोड है इसको नए सिरे से असर नो इसको बनाया जाए। सब तो मेन मसला इतना पानी की निकासी का सर, सीवरेज का सर। मंगला रोड तो लैके इतने तक सारा पानी इस एरिए जाके जमा होता है। गए रोड पानी आके स्टाक होता है तो फिर आस्ता आस्ता रोड टूट गया है। हूँ बस खंडरात का मंजर पेश कर दिया। गुज़श्ता 10 सालों से इलाका मकीन किसी मसीहा का मुंतज़िर हैं। इलाका मकीनों ने हुकूमत वक्त और डिप्टी कमिश्नर झेलम से मुतालबा किया है कि सीवरेज का निज़ाम जो बेहतर किया जाए और इस सड़क को जल्द अज जल्द तामीर किया जाए ताकि हम सुख का सांस ले सकें। कैमरा टीम के साथ सैयद जुल्करनैन शाह, सच न्यूज़, दीना। आगे बढ़े और बात करें दरियाए सिंध की, तो हालिया बारिशों से दरियाए सिंध में भी पानी की सतह में इजाफा हो रहा है। कोट अद्दू के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। इलाका मकीन नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट करेंगे इसहाक काज़मी। हालिया बारिशों से दरियाए सिंध में पानी की सतह में इजाफा हो गया। हेड तौसा बिराज पर पानी की आमद और अखराज 3,80,000 क्यूसेक है जबकि अपर स्ट्रीम में कोटदू के मुतअद्दिद मुआवजात और नशेबी इलाके ज़ेर आब आ चुके हैं। कच्चे की आबादी शदीद मुतासर हो चुकी है। इलाका मकीन नकल मकानी करने मजबूर हैं। ज़मीनी रास्ते मुनक़ता होने से लोग कश्तियों के जरिए अपनी मदद आप के तहत माल मवेशी और साजो सामान एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने लगे हैं जबकि इंतजामिया की जानिब से किसी किस्म की इमदादी कार्रवाइयाँ देखने को नहीं मिलती हैं। ज्यादा कटा हुआ ढाए पई दूजा ये माल शाल जई शई सारा ढाए देन माल बाल में छीटा मीटा आट के गुजारा करने पे माल लड़ी वेने थाला ले पासे थे इन्हें को नहीं थे बिलासों पीछे आसों बाले बच्चों को लाग गन वेसों। इलाका मकीनों ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान गुलजार और आला हुकाम से मुतासरा इलाकों में इमदादी टीमें भेजने का मुतालबा किया है। कैमरामैन काशिफ अली के साथ इसहाक काज़मी, सच न्यूज़, कोट अद्दू। रहीम यार खान के इलाके ज़ाहिर पीर में दरियाए सिंध में तुग़यानी से मुतवक्का सैलाबी सूरत हाल के बायस तमाम महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। दरियाए सिंध में इस वक्त दरमियाने दर्जे का सैलाब है। एक्सन नहार का कहना है कि पानी का बहाव 3.5 लाख क्यूसिक है। आइंदा चंद दिनों में मजीद 1 लाख क्यूसिक पानी की आमद मुतवक्के है। महकमा नहार के हिफाजती इक़दामात काबिल इत्मीनान हैं। डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद ने डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी के हमरा दरियाए सिंध मंचनाबाद शरीफ का दौरा किया। उनका कहना था मुमकिन सैलाब से निमटने के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। उन्होंने इंतजामिया को हिदायत की कि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए मशीनरी फंक्शनल और अफरादी कुव्वत तैयार रखी जाए।
ڈپٹی کمشنر نے مزید کہا کہ اسسٹنٹ کمشنر اپنی تحصیلوں میں دریائے سندھ کے حفاظتی بندوں اور فلڈ پوائنٹ پر محکمہ انہار کی معاونت سے حفاظتی اقدامات کریں۔ علی شہزاد نے مزید کہا کہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام محکمے الرٹ کر دیے گئے ہیں۔ ضلعی انتظامیہ کسی بھی ناآگاہی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام وسائل بروکار لائے گی۔ فلڈ ریلیف کیمپ قائم کرنے کے لیے تمام انتظامات مکمل ہیں۔ سبی میں حالیہ بارشوں نے تباہی مچا دی۔ بارش سے بے گھر ہونے والے افراد کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ دیکھتے ہیں عمر فاروق کی یہ رپورٹ۔ بارش پہلے رحمت پھر زحمت۔ سبی میں بارش خوب جم کے برسی۔ جہاں بارش سے گرمی کا زور ٹوٹا تو وہیں کئی کچے مکانات بھی زیر آب آ گئے۔ جہاں کئی لوگ مکانات منہدم ہونے کی وجہ سے بے گھر ہو گئے تو وہیں کئی لوگ بھی گھر کی دیوار گرنے سے لقمہ اجل بن گئے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کی جانب سے نہ تو کوئی ان کے نقصانات کا ازالہ کرنے کے لیے آیا اور نہ ہی کوئی ان کو راشن فراہم کرنے کے ساتھ دادی تھی گئی ہے، ہم بڑھ گئی ہے، ہم کا بچہ بھی نہیں ہے، مرس بھی نہیں ہے، ہم رنگدار ہے، کوئی کھاتا پیتا نہیں ہے، ہم لاچار آدمی ہیں۔ بارشوں کی وجہ سے ہمارے مکان گر گئے ہیں، جو ہم لوگ ابھی کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں۔ ہم غریب ہیں جو نہ بنا سکتے ہیں، ہمیں توفیق نہیں ہے، مزدوری کر کے پیٹ پالتے ہیں۔ مہربانی کر کے ہمارے ساتھ تعاون کیا جائے۔ شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے نقصانات کا ازالہ کریں تاکہ وہ اپنے مکانات دوبارہ سے تعمیر کر سکیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عمر فاروق، سچ نیوز، سبی۔ دادو میں کاچوں کے مکینوں کی مشکلات کم نہ ہوئیں، تاحال رابطہ سڑکیں بحال نہ ہو سکیں، جس کی وجہ سے 100 سے زائد دیہاتوں کا جوہی اور دادو شہر سے زمینی رابطہ منقطع ہے۔ دادو کے علاقے کاچوں میں سیلاب آیا اور سب کچھ بہا کر لے گیا۔ 4 ہفتے گزر گئے، پانی بھی کم ہو گیا، لیکن تاحال رابطہ سڑکیں بحال نہیں ہو سکیں۔ کاچوں کے مکین اس جدید دور میں بھی پتھر والے دور کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ کچے مکانات سیلابی ریلے کی نظر ہو گئے، جس کے باعث متاثرین کھلے آسمان تلے بے یار و مددگار زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ کھادو نہ پیتو نہ پانی سفا خراب پانی کھارو لگو پو ڈسی سگو تھا۔ ہر بیمار تھی پیا نہ دوائی نہ دارو نہ کھادو نہ پیتو، کوئی انتظام وارو کونے۔ کل کھان وٹھی جو رنگ بند اساں بدو پیا تھا، پانی متھا مینہ، اساں بیمار تھی پیا ہوں، اساں کے کو بھی کون آयो صفا اساں مچھر کھادو پیتو شے کونے۔ ہیر مجھے طبیعت ٹھیک کونے، بچڑا ڈسو تا کم کرے رہیا آہن، کو ماڻهو اساں کونے کم کرن وارو، پانی گھر میں بٹ تباہ تھی ویندا۔ سب لڑی ویو پانی میں، اساں بس ان جو ہکڑو بوري ہو منتخب نمائندگان کے دعوے اور اعلانات بھی جھوٹے نکلے۔ سندھ حکومت نے کاچوں کو آفت زدہ قرار دیا، لیکن سیلاب متاثرین کو تاحال کوئی ریلیف فراہم نہیں کیا گیا۔ متاثرین کہتے ہیں حکومت نے کوئی ریلیف تو نہیں دیا، کم از کم رابطہ سڑکیں ہی بحال کر دی جائیں تاکہ ان کی مشکلات کم ہو سکیں۔ شعیب تھیم، سچ ٹی وی، دادو۔ ٹنڈوالہ یار میں بھی بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ بارش کا پانی تاحال سڑکوں اور گلیوں میں جمع ہے اور شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ رپورٹ کریں گے امتیاز حسین۔ ٹنڈولیار میں ہونے والی تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کے بعد نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ چند علاقوں کے علاوہ اب تک بارش کا پانی لوگوں کے گھروں اور گلیوں میں کھڑا ہے۔ پانی کی نکاسی کا عمل درست نہ ہونے پر ایم پی اے سید ضیاء بادشاہ رضوی نے ٹنڈولیار کے تمام ڈسپوزل اور نصیر کینال کا دورہ کیا۔ ایم پی اے سید ضیاء بادشاہ رضوی نے بلدیاتی عملے کو سختی سے ہدایت کی کہ بجلی نہ ہونے پر ڈسپوزل پر جنریٹر چلائے جائیں اور جہاں مشینوں کی کمی ہے وہاں ایمرجنسی کی بنیاد پر مشینیں لگائی جائیں۔ عوام کو ریلیف دینے کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ موقع پر ایم پی اے سید ضیاء بادشاہ رضوی نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے ہمیشہ عوام کی خدمت کی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے سخت احکامات کے بعد تمام ادارے عوام کی خدمت کے لیے کوشاں ہیں، جبکہ سندھ کے مختلف اضلاع کو آفت زدہ قرار دیا گیا ہے، جس میں ٹنڈولیار بھی شامل ہے۔ اس موقع پر سید محمد حسن شاہ، بھورل شاہ رضوی، روار پرویز سمو، مولا بخش ٹھیبو، آفتاب جونیجو، اسماعیل چھچھر، جاوید لن اور دیگر افراد بھی موجود تھے۔ امتیاز حسین، سچ ٹی وی نیوز، ٹنڈولیار۔ طوفانی بارشوں میں ملتان کے علاقے مظفر آباد کے رکشہ ڈرائیور زاہد کے کچے گھر کی دیواریں اور اکلوتی چھت بھی گر گئی۔ علاقے میں سیوریج سسٹم نہ ہونے کے سبب اہل علاقہ کے گھروں کی بنیادیں کھوکھلی ہو چکی ہیں۔ احمد کاشف رپورٹ کریں گے۔
कहते हैं दुख बता देने से दुख सहने की ताकत खत्म हो जाती है, मगर क्या कीजिए कि बाज दुख बताने तो क्या सहने के लिए भी जिगर चाहिए। मकान कच्चा, दीवारें शिकस्ता, वजूद बीमारियों का घर और तूफानी बारिशों का सितम। मुल्तान के जाहिद का मुकद्दर लुट गया। बारिश तो रहमत की थी, मगर इलाका में सीवरेज सिस्टम ही नापैद है, जिसकी वजह से उसके घर के दरो दीवार और इकलौती छत भी गिर गई। कमाने को एक रिक्शा था जो बेच बाच कर जिगर की बीमारी पर लगा दिया, अब खाए कहाँ से। हमारे इलाके मुजफ्फराबाद में जहाँ मैं रह रहा हूँ ना, यहाँ पे पानी का निज़ाम नहीं है, गटर वगैरह है नहीं, जिसकी वजह से हमारा ये मकान भी गिर गया है। हमारी ये वासा और एमडी और मुल्तान इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट है कि हमारे इलाकों में ना गटर का कोई निज़ाम बनाए सीवरेज का, ताकि हमारे मज़ीद नुकसानात ना हो। सीवरेज का कोई इंतज़ाम नहीं हो रहा, जब भी पानी बारिश आती है हमारे मकानों का ये हाल हो जाता है। अब गुजरने का भी रास्ता नहीं है यहाँ से, अब क्या करें, हम किसको जाके कहे। जाहिद कहता है कि अगर उसके इलाके में सीवरेज की निकासी का कोई इंतजाम होता तो आज उसके घर की चार दीवारी ना गिरती और शायद छत भी बची रहती। अपने महल्लात के शबिस्तान में आराम फरमाते रियासत मदीना के दावेदार जरा एक नजर इधर भी कर लें। बोसीदा मकानों की दीवारें गिर जाएं तो मकीनों के दिल लरज उठते हैं। जाहिद के घर की ईंटें किसी बदनसीब के मुकद्दर की तरह बिखरी पड़ी हैं। काश कोई इन्हें फिर से जोड़कर दुनिया में इस गरीब और आखिरत में अपना घर तामीर कर ले। कैमरामैन रमजान अली के साथ अहमद काशिफ, सच टीवी, मुल्तान। आगे बढ़े और खबर शामिल करें मीरपुर खास में, जहां मीरवाटू रोड पर सैलाब से मुतासर अफराद ने धरना दे दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा समीर मीर ने सिंध हुकूमत से अवाम की मदद करने की अपील कर दी। मीरपुर खास में सैलाब से मुतासिर होने वाले अफराद सड़कों पर निकल आए। मुतासरीन ने मीरवाटू रोड पर धरना दिया, जिससे ट्रैफिक जाम हो गई। 3 घंटों तक धरना जारी रहा। इस मौके पर पीटीआई रहनुमा समीर मीर शेख भी पहुंच गए। उनका कहना था कि सिंध हुकूमत के वज़रा कराची में खड़े पानी में तस्वीरें बना रहे हैं, यहाँ आकर गरीब आवाम की मदद करें। ये आवाम का हाल देखें आप, ये सुबह से लेकर यहाँ बैठे हुए, कई दिनों से बैठे हुए, इनके गांव, इनके घर, इनके बच्चे रोडों पे आ गए, इनके घर जो हैं पानी के अंडर हैं। हमारे जो एसडीओ साहब हैं वो कोई इनकी मदद करने के लिए नहीं आ रहे हैं, कमिश्नर साहब इनकी मदद करने के लिए नहीं आ रहे हैं। कराची के अंदर पीपल्स पार्टी के जो वजीर हैं वो शारे फैसल पे वीडियोस बना रहे हैं और स्विमिंग पूल के अंदर तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। ये आवाम का हाल देखें, इनकी मदद आप ये इतने दिनों से जो कर रहे हैं, अभी कोई भी इनकी मदद नहीं करने आ रहा। मैं मुतालबा करूंगा सीएम सिंध से कि भाई आप हेलीकॉप्टर में तो घूमते रहें, आप हेलीकॉप्टर में आपने बड़ी तस्वीरें खींची हैं। ये गरीब आवाम है, ये जिनकी वोटों से आप ये अरबों रुपए की गाड़ियां खरीदते हैं, अरबों रुपए के घर खरीदते हैं। खुदारा आए, इनकी मदद करें, इनके मसाइल हल कराएं। कमिश्नर से मैं मुतालबा करता हूँ कि इधर फौरी तौर पर आए। हमारे जो वजीर हैं नासिर हुसैन शाह साहब, वो अभी वीडियो उनको थोड़ी देर में ये मिल जाएगी और आपका चैनल की तरफ से भी आ जाएगा। अगर उनको इस आवाम का दर्द है तो आएं और आके इनकी मदद करें। सुमेर मीर शेख ने जिला इंतजामिया और मुजाहिरीन में मुज़ाकरात कराए। कामयाब मुज़ाकरात के बाद धरना खत्म कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल ने सराय सिद्धू में दरिया चनाब और रावी से ज़ेर-ए-आब आने वाले नवाई इलाकों का दौरा किया और मुमकिना सैलाब की सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत की हैं। रिपोर्ट करेंगे अली रजा नकवी। यूनियन कौंसिल कुंड सरगाना में दरिया रावी चनाब ने तबाही मचा दी। कई सौ एकड़ पर तैयार खड़ी फसलें कमाद, मकई, कपास, चावल और फसल चारा सैलाबी रेला से ज़ेर आब आ गई। दरिया रावी और चनाब ने यूनियन कौंसिल कुंड सरगाना के मुख्तलिफ देहात जिसमें शकरोवाला, कच्चा कबीरा, जहाना मिराली, चक नौरंगशाह को अपनी लपेट में ले लिया। देहाती मकीन अपनी मदद आपके तहत अपना घरेलू सामान कश्तियों पर दरिया से बाहर खुले आसमान तले रखने पर मजबूर हो गए। दूसरी तरफ दरिया रावी और चनाब से ज़ेर आब आने वाले इलाकों में डिप्टी कमिश्नर खानेवाल आगा ज़हीर अब्बास शिराजी ने विजिट किया और कहा कि मुमकिना सैलाब से निपटने के लिए तमाम महकमे हाई अलर्ट कर दिए हैं और फ्लड रिलीफ कैंप भी लगा दिए गए हैं। इमरजेंसी के लिए डॉक्टर मौजूद हैं और रेस्क्यू की टीमें सैलाबी रेले में फंसे हुए लोगों को पानी से निकाल कर महफूज जगह पर पहुंचाने में लगी हुई हैं। दरियाए किनारे विजिट के मौके पर डिप्टी कमिश्नर आगा ज़हीर अब्बास शिराजी ने कहा, सेटल किए हुए यहाँ पे रेस्क्यू 1122 प्लेस है। हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम्स और लाइफ स्टाफ को भी हमने मोबिलाइज कर दिया है और बाकी जो अभी फ्यूचर की स्ट्रेटजीज हैं वो ज़ाहिर है उसको हमने टेकअप किया। जो इमीडिएटली अभी कोई एक्शन इस पे जो लोकल कोई बंद वगैरह यहाँ पे ब्रीच हुआ है तो उसका इरिगेशन वाले जो है उसको इस सिचुएशन के बाद उसको देखेंगे कि उसमें क्या बेहतरी हो सकती।
इंशाल्लाह उसको टेकअप किया है, मीटिंग भी आज हमने की और साइट विजिट किया है, इंशाल्लाह उसको देखें। इस मौके पर कुंड सरगाना के देहाती मकीनों ने आगा ज़हीर अब्बास शिराजी से मुतालबा किया कि कुंड सरगाना के 11,000 आबादी को दरियाए रावी के कटाव से बचाने के लिए सुपर बंद का फौरी इजरा किया जाए। कैमरामैन राना अदनान के साथ सईद अली रज़ा नकवी, सच न्यूज, सराय सिद्धू। लालिया का नवाही गांव सुरोवाला मसाइल का गढ़ बन गया। सेवरेज सिस्टम न होने के बायस गलियां बाजार का मंजर पेश कर रही हैं और लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। रिपोर्ट करेंगे शकील अब्बास। चिन्नौर की तहसील लालिया का नवाई कस्बा सुरोवाला बुनियादी सहूलियात से महरूम, जगह जगह गंदगी के ढेर और शहरी निजाम न होने की वजह से गांव के चारों जानब गंदे पानी के बड़े बड़े जोहड़ हैं, जो देहातियों के लिए वबाल जान बन गए हैं। मच्छरों, ताउफन और बदबू से सुरोवाला के मकीन बीमार होने लगे। हमारे मौजा सुरोवाला की तकरीबन कोई 4-5 हजार लोगों की आबादी है और हमारे मौजा सुरोवाला में अब नकासियाब का बहुत दरीना मसला है और आज तो बारिशों और इस मौसमी हालातों से बहुत ही पेचीदा हो गया। गलियों से गुजरना बहुत मुश्किल है, बच्चों को स्कूल जाना बहुत मुश्किल है, नमाजियों के लिए कपड़े साफ रखना और मस्जिद तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल हो गया है। बुजुर्ग तो गलियों में गिर जाते हैं, बूढ़ी औरतें गिर जाती हैं। हमारी वज़ीर आला पंजाब और डीसी चिन्नौर साहब से गुजारिश है कि हमारा इस मुतालबे को मद्देनजर रखते हुए और हमारे इस मौजूदा की नकासी आपका मसला हल करवाया जाए। गांव की गलियों में ना सोलंग और ना नालियां हैं, घरों के सामने कूड़े क्रिकेट के ढेर लगे हुए हैं, मगर मुतलका महकमे इस गांव की हालत ज़ाहिर पर तवज्जो देने को तैयार ही नहीं। और सरुवाले के लोगों के यही कहना था कि हमारे सफाई सुथराई और शहरी निजाम को बेहतर किया जाए। कैमरामैन अली जैन के साथ शकील अब्बास, सच न्यूज, लालिया। हारूनाबाद में म्यूनिसिपल कमेटी की गफलत के बायस शहर की गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। शहर में सफाई सुथराई के नाकिस इंतजामात के बायस शहरी मूजी अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। देखते हैं अरशद अली गौरी की ये रिपोर्ट। म्यूनिसिपल कमेटी हारूनाबाद की नाअहली कजतल, हाशिम कॉलोनी, खान कॉलोनी, भट्टा, मोहम्मदपुर और दीगर करबो ज्वार में सीवरेज की बंदिश वजह से अरसा दराज से गटर उबल रहे हैं, जिसके बायस गलियां तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। सीवरेज के गंदे पानी से गुजरकर लोग बाजार से घर का सौदा सलफ लाने पर मजबूर हैं और दूसरी जानब नमाजियों का मस्जिद में बाजमात नमाज पढ़ने जाना भी मुहाल हो गया है। शहरियों का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि हमने म्यूनिसिपल कमेटी इंतजामिया के खिलाफ कई बार एहतजाज किया है और एसी मोहम्मद तैयब चौधरी को भी 12 दरखास्तें दे चुके हैं, लेकिन म्यूनिसिपल कमेटी इंतजामिया है कि टस से मस नहीं हो रही। सीवरेज का गंदा पानी खड़ा रहने की वजह से सड़क में गड्ढे पड़ चुके हैं। सड़कों में गड्ढे पड़ने की वजह से आमदोरफ्त में भी शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों ने वजीर आजम इमरान खान, वजीर आला पंजाब, कमिश्नर बहावलपुर, डीसीओ बहावलनगर से फौरी मुकामी इंतजामिया का किबला दुरुस्त करवाने की अपील की है। कैमरामैन मुजफ्फर अली साहर के साथ अरशद अली गौरी, हारूनाबाद। बहावलपुर की सब तहसील उल शरीफ के मोहल्ला जगपुरा का सेवरेज सिस्टम नाकारा हो गया, जिसके बायस शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद ताहिर। और शरीफ मोहल्ला जागपुरा का सेवरेज सिस्टम नकारा हो गया। सेवरेज सिस्टम नकारा होने से गटरों का गंदा पानी घरों के इर्द गिर्द जमा हो गया, जिसके बाद शहरियों को आमदरफ्त में सख्त दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। अरसे दराज से सेवरेज सिस्टम खराब पड़ने से पानी तालाब का मंजर पेश करने लगा, जिसके बाद शहरी डेंगू, मलेरिया जैसी मूजी मर्ज में मुब्तला होने लगे। गटरों का पानी जमा होने से घरों को भी नुकसान पहुँचने लगा। सेवरेज का गंदा पानी जमा होने से नमाजी हजरात का मसाजिद में जाना भी दुश्वार हो गया। शहरियों ने मस्जिद सच न्यूज को बताया कि जी हमारा मोहल्ला जो है ना जागपुरा, यहाँ से गुजरना बहुत मुश्किल हो चुका है और यहाँ ये जो गंदा पानी है, गटर का पानी है, इसे गटर में ही जमा करवाना चाहिए। हमारी जो टाउन कमेटी और शरीफ है उनसे हम मुतालबा करते हैं। इस गंदे पानी की वजह से हमारा पीने का पानी भी खराब हो चुका है और हमारे बच्चे जितने भी हैं और वो बुखार की शिकार है और मलेरिया बुखार है इसकी वजह से। और साथ मस्जिद है, मस्जिद का रास्ता बिल्कुल नहीं है यहाँ से जाने का। ये तो हमारा नज़ारा ऐसा हो रहा है जैसे कराची का सीन हो, कराची जैसा हाल हमारा ना हो जाए। हमारा मुतालबा है टाउन कमेटी और शरीफ से और अहकाम बाला से कि हमारी जो है ये सुनवाई की जाए और ये पानी गटरों का गटरों में ही जमा किया जाए। शहरियों ने एहतजाज करते हुए हुकूमत और मकामी इंतजामिया से मुतालबा किया है कि और शरीफ मोहल्ला जागपुरा का सेवरेज सिस्टम दुरुस्त कराया जाए ताकि शहरियों को आमदरफ्त में आसानी हो। कैमरामैन इजाज हुसैन के साथ अजीब मोहम्मद साथ न्यूज और शरीफ। पंजाब के दीगर शहरों की तरह लिया के इलाके चौक आजम में सेवरेज का नाकिस निजाम है। गलियों में सेवरेज का पानी जमा होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। रिपोर्ट करेंगे ज़हूर दुरानी।
नवाई इलाका चौकाजम में निकासी आब का निजाम बेहतर न होने की वजह से गलियां मल्ले जौहर का मंजर पेश करने लगे। सीवरेज का पानी घरों में दाखिल होना शुरू हो गया। जहां शहरियों का गलियों से गुजरना मुश्किल है, वहीं घरों के बाहर खड़े पानी ने लोगों को घरों में महसूर कर रखा है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शहरियों का कहना था, जी ये देखें वार्ड नंबर 7 मल्लास्कराबाद में जो है सीवरेज का गंदा पानी जो है तालाब का मंजर पेश कर रहा है। मक्की जामे मस्जिद के चारों रास्ते जो है सीवरेज के गंदे पानी की वजह से बंद हो चुके हैं, जिससे नमाजियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। उसके अलावा सीवरेज का गंदा पानी लोगों के घरों में दाखिल हो रहा है, जिससे बीमारियां फैलने का भी खतरा है। ये बिजली के खंभे हैं जो पानी में मुकम्मल तौर पर डूब चुके हैं, जिससे जो है हमारे मोहल्ले के काफी बच्चों को जो है करंट भी लग चुका है। हमारी जो है डीसी साहब से, अमला म्यूनसिपल कमेटी से और मकामी क़यादत से गुजारिश है कि खुदारा फिलफौर इस मसले का हल कराया जाए। सीवरेज के पानी में डूबे बिजली के पोल्स किसी भी वक्त हादसे का सबब बन सकते हैं। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ जहूर दुरानी, सच न्यूज लिया। आगे बढ़े और बात करें बढ़ती महंगाई की, तो मुल्क भर की तरह खैरपुर में भी मुनाफाखोर सरगर्म हो गए। सब्जियों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी, जिससे शहरियों को शदीद परेशानी है। रिपोर्ट करेंगे अली गौहर। खैरपुर में महंगाई का जिन बेकाबू मुनाफेखोर दोनों हाथों से लूटने लगे। सब्जियों समेत एशिया खोर नोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी, जिसकी वजह से दिहाड़ीदार तबका परेशान है। इस बारे में शहरियों का कहना है कि गरीब को निचोड़ा जा रहा है और कुछ भी नहीं। अगर शॉप कीपर वाला 5 वाली चीज 50 में बेच रहा है तो उससे कोई पूछने वाला नहीं है। जो गरीब है वो गरीब बनता जा रहा है, जो अमीर है वो अमीर बनता जा रहा है, और कुछ भी नहीं कर रही इंतजामिया। सिर्फ उनसे जो है मंथली ले रही है, मंथली के एवज ही खामोश है। खैरपुर के 8 तालके, 8 तालकों में एक दुकान पर भी आप रेट लिस्ट देखा है मुझे, कहां पर रेट लिस्ट लगी हुई है। शहरी कहते हैं कोरोना के बाद रोजगार मिलना मुश्किल है, तो दूसरी जानिब मुनाफेखोरों ने एशियाई खरनोश की कीमतें में खुद सख्त इजाफा करके मुश्किलात बढ़ा दी है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करके रिलीफ फराहम किया जाए। कैमरा टीम के साथ अली गोरगोपांग, सच न्यूज खैरपुर। इलाकाई नामे में वक्त हुआ ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। अभी कसूर के इलाके रुकनपुरा बिजली की लटकती तारें शहरियों के लिए वबाले चांद बन गई। माहर मोहम्मद अमीन की रिपोर्ट देखिए। ये मनाजर है कसूर के इलाके बस्तरपुरा रुकनपुरा साबर बस्ती के, जहां बिजली की नंगी लटकती तारें इलाका मकीनों के सिरों पर मौत बनकर लटक रही हैं और बच्चों समेत इलाका मकीनों के छू जाने से मौत का पैगाम बन सकती हैं। आजकल बरसात के मौसम में दीवारों में करंट आने से इसके खतरात मजीद बढ़ जाते हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि मुतअद्दिद बार वापडा के अफसरान को दरखास्तें दी, मगर महकमा वापडा शायद किसी बड़े हादसे के इंतजार में है। उन्होंने अहले इलाका के लिए कोशिश की है, क्योंकि ये तारों का मसला है ना, ये बहुत दरीना मसला है, पुराना मसला है, इसका कोई हल नहीं निकल रहा। मुतअद्दिद बार वापडा के मुलाजमीन को भी कहा है, और जो SDO साहब है, एक्सिन साहब है, उनको भी रिक्वेस्ट की है कि हमारे जो ये गली की तारें ऊंची की जाएं, क्योंकि ये तारें इतनी नीची हैं, कोई चीज़ लेके गुजरता है तो उसके सर को भी लग सकती है। बरसात का मौसम है, जैसा कि आपको पता है कराची के जो हालात है, रोज़ाना कोई ना कोई मसला हो रहा है, कोई बंदा करंट लगने से वफात पा रहा है। तो अगर कसूर में कोई ऐसा मसला हो गया तो फिर ये हेडलाइन बनेगी। इससे पहले यही अच्छा है कि ये इस पे गौर करें। बिजली की नंगी तारें और नीचे लटकते मीटर वापडा की तवज्जो का सबूत है। शहरी हजारों रुपए के बिल टैक्सों समेत अदा करते हैं, मगर महकमा वापडा इनकी शिकायत जिससे जिंदगियों को खतरा है इनको दूर नहीं कर रहा। गुच्छे बने हुए हैं तारों के, तो कोई भी चीज़ लेके जाते तो सिर को तो टच होती है, तो करंट भी आता है। ये नहीं कि आता नहीं, आता है करंट। जैसे कि दीवार को हाथ लगाएंगे तो अर्थ आता। मेरे स्कूल के सामने तारें, वो उधर अर्थ आ रहा है, जाके अभी चेक कर लें। तो गली में भी यही हाल है, लेकिन हम तो 2-3 साल से ये कह रहे हैं भी ये तारों को ठीक करें। ये जो एंगल निकल जाता है इसको वापडा वाले आके लगाते ही नहीं है। शहरियों का आला हकाम से मुतालबा है कि बिजली की तरसील के मरबूत निजाम को दुरुस्त करके इलाका मकीनों की परेशानियों का हल किया जाए, ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। महर मोहम्मद अमीन, सच न्यूज कसूर। आगे बढ़े और खबर दें मुजफ्फरगढ़ से, जहां दारुल अमान में आग लग गई। दारुल अमान में मौजूद कंप्यूटर, पंखे, सिलाई मशीनें, फर्नीचर और दीगर सामान जलकर राख हो गया। मुजफ्फरगढ़ में दारुल अमान सेंटर में मौजूद स्टोर में आग लग गई। आग लगने से स्टोर रूम में मौजूद साजो सामान जलकर राख हो गया। आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। आग ने कंप्यूटर, सिलाई मशीनें, पंखे और स्टोर में मौजूद फर्नीचर और दीगर सामान को भी अपनी लपेट में ले लिया। वाक़े की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीमें जाए हादसा पर पहुंच गईं और दारुल अमान में मौजूद खवातीन को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया।
ملک کو سرسبز و شاداب بنانے کا مشن رحیم یار خان کے علاقے ظاہر پیر میں گرین اینڈ کلین پاکستان مہم کے تحت موٹر وے پولیس کی جانب سے 2000 سے زائد پودے لگائے گئے۔ رپورٹ کریں گے غفار رشید۔ گرین پاکستان کے مشن کو کامیاب کرنے کے لیے موٹر وے پولیس کے سیکٹر کمانڈر میاں افنان امین نے موٹر وے دفتر میں پودا لگا دیا۔ موٹر وے پولیس نے ہر بیٹ میں 2000 سے زائد پودے لگائے۔ سیکٹر کمانڈر نے تمام پیٹرولنگ افسران کو پودوں کی نگرانی کرنے کی بھی ہدایت کی۔ پولیس رحیم یار خان سیکشن N5C3 نے آغاز شروع کر دیا ہے اور ابھی ہم نے پودے لگا کے باقاعدہ طور پہ اس پلانٹیشن کی جو ہے وہ افتتاح کر دی ہے۔ انشاءاللہ باقی بھی موٹر وے پولیس ہمہ وقت اپنی ڈیوٹیز کے ساتھ ساتھ درختوں کی پلانٹیشن وغیرہ کرے گی اور کلین اینڈ گرین پاکستان کے ویژن کو انشاءاللہ کامیاب بنائے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ہر شخص اپنے حصے کا پودا لگائے تو آنے والی نسلیں بھی ماحولیاتی آلودگی سے بچ سکتی ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ غفار رشید، سچ نیوز، ظاہر پیر۔ کمالیہ میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایگریکلچر پیسٹ وارننگ ٹوبا ٹیک سنگھ اصغر شاہد اور انسپیکٹر ایگریکلچر سدرا مکیت نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے پاکستان زرعی کارپوریشن سے لاکھوں روپے کی مالیاتی جعلی زرعی ادویات قبضے میں لے لیں۔ اسد راجپوت رپورٹ کریں گے۔ مالیہ میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر پیسٹ وارننگ ٹوبا ٹیک سنگھ اصغر شاہد اور انسپیکٹر ایگریکلچر سدرا مکیت نے عوامی شکایات پر اپنی ٹیم کے ہمراہ مامو کانیا روڈ پر کارروائی کرتے ہوئے پاکستان زرعی کارپوریشن سے لاکھوں روپے کی مالیاتی جعلی زرعی ادویات قبضے میں لے لی۔ اس موقع پر اسسٹنٹ ڈائریکٹر پیسٹ وارننگ اصغر شاہد نے سچ نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، زرعی مرکز مامو کانیا روڈ کمالیہ سے مخبر نے اطلاع دی تھی کہ یہاں پہ غیر قانونی زرعی ادویات کا کاروبار ہو رہا ہے، تو آج جب ہم نے ریڈ کیا تو یہاں سے بھاری مقدار میں زرعی ادویات برآمد ہوئی ہیں جو انہوں نے اپنے پچھلے خفیہ خانے میں چھپا کے رکھی ہوئی تھی اور اس کا دروازے نہیں کھول رہے تھے۔ بڑی مشکل سے ہم کامیاب ہوئے ہیں۔ عوامی شکایات پر کارروائی کرتے ہوئے پاکستان زرعی کارپوریشن پر ریڈ کیا اور ان کے خفیہ سٹور سے غیر قانونی اور جعلی ادویات کی کھیپ برآمد ہوئی جن کی مالیت تقریباً 4 لاکھ روپے بنتی ہے۔ دکاندار کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی اور ان جعلی ادویات سے نہ صرف فصل کی پیداوار میں کمی ہوتی ہے بلکہ بڑی تعداد میں کیڑے پیدا ہوتے ہیں جو کہ مہنگا سپرے کرنے سے بھی ختم نہیں ہوتے، جس سے کاشتکاروں کو شدید نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ضلع بھر میں جعلی ادویات بیچنے والوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں اور ایسے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ اسد راجپوت، سچ نیوز ٹی وی، کمالیہ۔ حافظ آباد کے جناح ہال میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں سینیٹری ورکرز کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ دیکھتے ہیں ظفر اقبال کی یہ رپورٹ۔ حافظ آباد کے جناح پبلک ہال میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں چیئرمین سی بی آئی اسحاق مسیح کی قیادت میں نئے آنے والے چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن سمیر انتصار چیمہ کا جناح ہال پہنچنے پر شاندار استقبال کیا گیا۔ تقریب میں سینیٹری ورکر کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن سمیر انتصار چیمہ اور چیئرمین اسحاق مسیح کے حق میں سینیٹری ورکر کی نعرے بازی۔ اس موقع پر چیئرمین اسحاق مسیح اور چیف آفیسر سمیر انتصار نے کہا کہ سینیٹری ورکر میرے بازو ہیں اور ہم ان کے تعاون سے شہر کی صفائی ستھرائی کو بہتر سے بہتر کر دیں گے۔ اس موقع پر چیئرمین سی بی آئی اسحاق مسیح نے پنجاب حکومت سے سینیٹری ورکر کی تعداد میں اضافے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ صدر ایپک یونین نصر اللہ اجرا نے بھی خطاب کیا۔ اس موقع پر شیعہ رہنما زوار لیاقت علی کھنو نے محرم الحرام کے دوران مادمی جلوسوں کے راستوں کی صفائی رکھنے پر چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن اور چیئرمین اسحاق مسیح سمیت تمام ورکر کا شکریہ ادا کیا۔ کیمرہ مین وارث علی خان کے ساتھ زوار ظفر اقبال، سچ نیوز، حافظ آباد۔ ضلع لوئر دیر میں کرونا کیسز میں نمایاں کمی آنے کے بعد ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال تمر گراں کی او پی ڈی اور سرجیکل یونٹ کھول چکے ہیں جہاں مریض بڑی تعداد میں علاج معالجے کے لیے آ رہے ہیں۔ رپورٹ کریں گے رحمت اللہ۔ یہ مناظر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال تیمرگرہ کا ہے جس کے تمام او پی ڈیز مریضوں کے علاج معالجے کے لیے کھولے ہیں اور دور دراز سے بڑی تعداد میں مریض علاج کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ تیمرگرہ ڈی ایچ کیو ہاسپٹل جو ہے نا اس میں ساری او پی ڈیز کھلی ہوئی ہے، لوگ آ رہی ہے، مریض بھی ہے اور یہاں پہ علاج معالجے کی جو سہولیات ہے وہ نارمل طریقے سے چل رہی ہے۔ 5 ماہ بعد ضلع لوئر دیر میں کورونا کیسز میں نمایاں کمی کے بعد اسپتال کے تمام او پی ڈیز اور سرجیکل اور ڈینٹل یونٹ فعال ہو چکے ہیں اور اسپتال کے طبی عملہ مسیحوں کی خدمت میں مصروفی عمل ہے۔ EMT میں ہم نئے اکوپمنٹس ہم لے کے آئے ہیں، ایکسپینسو ایک اکوپمنٹ ہے وہ بھی انشاءاللہ اس ہفتے لگ جائے گا، تو یہ فیسلٹیز انشاءاللہ آ رہی ہے اور کوشش ہماری یہ ہے کہ اس عوام کو ہم بہتر سے بہتر سہولیات ہم فراہم کر سکیں۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال تیمرگرہ کے کورونا انسولیشن وارڈ میں اس وقت کوئی مریض داخل نہیں جبکہ ضلع بھر میں صرف 13 کورونا مریض موجود ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ رحمت اللہ سواتی، تیمرگرہ، لوئر دیر۔
सिब्बी और नवाही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ा दिया गया। डिस्ट्रिक्ट जेल और डिविजनल हेडक्वार्टर अस्पताल में भी कई घंटे बिजली बंद रहने का शेड्यूल जारी किया गया है। सिब्बी में वाबता कैस्को हुकाम के जानिब से शहरियों और देही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ा दिया गया। शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 3 घंटे से बढ़कर 8 घंटे हो गया। देही इलाकों में यह दौरानिया 6 घंटे से बढ़कर 12 घंटे कर दिया गया। हुकाम ने शेड्यूल भी जारी कर दिया, जिसके मुताबिक पूरे दिन के मुख्तलिफ औकात में बिजली बंद की जाएगी। शेड्यूल के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट जेल और डिविजनल हेडक्वार्टर अस्पताल सिब्बी में इसी रूटीन से बिजली की बंदिश की जाएगी। घोटकी में माइक्रो बैंक में शॉर्ट सर्किट के बायस अचानक आग लग गई। शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत आग बुझाई। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। घोटकी में शॉर्ट सर्किट की वजह से माइक्रो फाइनेंस बैंक को आग ने घेर लिया, जिसके बाद शहरियों ने खुद से इस पर काबू पाया। बैंक के अमले का कहना है कि आग कई घंटे लगी रही, लेकिन फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर न पहुंच सकी। अमले का कहना है कि खुशकिस्मती से कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ। रहीम यार खान के इलाके ठुल हमजा में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोरी और डकैती की वारदातों में मुलव्विस 6 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। मुल्जिमान के कब्जे से मोटरसाइकिल, असलहा, नकदी भी बरामद कर ली गई। ठुल हमजा में थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोरी और डकैती की वारदातों में मुलव्विस 6 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। मुल्जिमान के कब्जे से मोटरसाइकिल, असलहा, नकदी समेत लाखों रुपए मालियत का मसरूका बरामद कर लिया गया और मुल्जिमान के खिलाफ मुख्तलिफ मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए। माल मसरूका असल मालिकान के हवाले कर दिया गया। गुजरात में सोशल मीडिया पर असलहे की नुमाइश करने वालों की शामत आ गई। पुलिस ने 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया। गोजरा शहर और गिरदोनवा में नौजवानों में नाजायज असलहा रखने के बढ़ते रुझान के तदारुक और सोशल मीडिया पर नाजायज असलहे की नुमाइश करने वालों के खिलाफ सख्त नोटिस लेते हुए CIA टोबा को ऐसे मुल्जिमान को ट्रेस करके गिरफ्तार करने का टास्क दिया गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 नौजवान गिरफ्तार कर लिए। मुल्जिमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमात दर्ज कर दिए गए हैं। पाकपतन में सूफी बुजुर्ग हजरत हाफिज मोहम्मद रमजान कादरी के 28वें उर्स की तकरीबात इख्तिताम पजीर हो गईं। अकीदतमंदों की बड़ी तादाद ने तकरीबात में शिरकत की। रिपोर्ट करेंगे चौधरी तारिक। सिलसिला कादरिया के अजीम बुजुर्ग हजरत पीर साईं हाफिज मोहम्मद रमजान के 28वें उर्स की 4 रोजा तकरीबात इख्तिताम को पहुंच गयीं। तकरीबात के दौरान महफिल समा में नामवर कवालों ने अपने कलाम के जरिए आपकी तालीमात को खराज अकीदत पेश किया। दरगाह के सजादा नशीन पीर गुलाम अब्बास कादरी का कहना है, बुजुर्गों के उर्स का 4 रोजा प्रोग्राम होता है, लंगर का वसी इंतजाम होता है। अकीदतमंद जो भी आते हैं वो फैज़याब होके जाते हैं। मुख्तलिफ इलाकों से आए ज़ायरीन ने 4 रोजा उर्स की तकरीबात में शिरकत की सादत हासिल की। मैं सालाना उर्स मुबारक पर विहाड़ी से आया हूँ और मैं हर साल यहाँ आता हूँ और हमेशा सरकार से फैज़ लेके जाते हैं। उर्स में शिरकत के लिए आया हूँ। मुझे यहाँ पे मैंने दुआ मांगी है और मुझे ज़हनी और रूहानी सुकून हासिल हुआ है और इंशाअल्लाह मैं बहुत फैज़याब होके जा रहा हूँ। उर्स में दुआया तकरीब के दौरान मुल्की तरक्की व खुशहाली, कोरोना वबा के खात्मे और कश्मीरियों की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआएं भी करवाई गई। कैमरा टीम के साथ चौधरी तारिक अली, सच TV, पाकपतन। देही इलाकों के रिहायशी सेहतमंद रहने के लिए वर्जिश के बजाय ज्यादातर कबड्डी, फुटबॉल और क्रिकेट समेत मुख्तलिफ खेलों में खेल खेलते हैं। हुकूमतें खेल की सरगर्मियां जारी रखने के लिए सरपरस्ती और इंतजामात के दावे तो करती हैं, मगर ये दावे कितने सच हैं, देखिए तुलंबा से हमारे नुमाइंदे अयाज अहमद सहू की ये रिपोर्ट। तुलंबा का अकलौता मामूशेर स्टेडियम जगह जगह से टूट फूट का शिकार। तुलंबा के अकलौते स्टेडियम का है बुरा हाल, इंतजामिया को ना आया ख्याल। मुस्तकबिल में खूबसूरती के ख्वाब देखने वाला स्टेडियम खंडरात का मंजर पेश करने लगा। मकामी खिलाड़ी परेशान। सहूलियात का फुकदान कहें या ये कहें कि स्टेडियम के लिए महज मुख्तस अराजी है तो गलत ना होगा। स्टेडियम बिजली, पानी और साए के इंतजाम से भी महरूम है। इस बारे में खिलाड़ियों और मकामी लोगों का कहना है कि हुकूमत तामुन करे। मकामी खिलाड़ियों और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका DCO
को खनेवाल और आला इंतजामिया से अपील करते हैं कि खेलों के फरोग के लिए मुनासिब और बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएं। कैमरामैन मोहम्मद उमैर के साथ अयाज अहमद साहू, तुलंबा। आम खबर से आपको आगाह करें, क्लिफ्टन कराची का पीटी अंडर बाईपास आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पर अंडरपास की मजबूती पर तहफ्फुजात का इजहार किया गया था। कीमती इंसानी जानों के तहफ्फुज को मद्देनजर रखते हुए इक़दाम किया। पुलिस ने मजीद कहा कि तकनीकी माहिरीन से राय ली जा रही है और ट्रैफिक मुतबादिल रास्तों पर भेजी जा रही है। आपको आम खबर से आगाह करते चलें, क्लिफ्टन कराची का पीटी अंडरपास आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पर अंडरपास की मजबूती पर तहफ्फुजात का इजहार किया गया था। कीमती इंसानी जानों के तहफ्फुज को मद्देनजर रखते हुए इक़दाम किया। पुलिस ने मजीद कहा कि तकनीकी माहिरीन से राय ली जा रही है और ट्रैफिक मुतबादिल रास्तों पर भेजी जा रही है। कराची के इलाके नया नाज़िमाबाद में बारिशों के बाद पानी मौजूद है। शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत वाटर संक्शन पंप लगा लिए। मशीनरी से पानी की निकासी का अमल रात के भी जारी है। मकीनों का कहना है कि सरकारी मशीनरी ना पहुंचने पर अपनी मदद आप के तहत निकासी कर रहे हैं। बड़े नाले बंद होने की वजह से निकासी में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मकीनों ने मजीद कहा कि बड़ी मशीनरी लगाई है, जल्द निकासी का काम मुकम्मल कर लेंगे। इलाकाई खबरनामे से फिलवक्त दीजिए इजाजत। मजीद किसी भी खबर या अपडेट के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट SachTV.pk। देखते रहिए सच न्यूज।